we'll complete the remaining part of Rahu and Ketu. That is the astrological characteristics, and we have already studied about the mythological stories of Rahu and Ketu and what Rahu and Ketu exactly doing in the Kali Yuga and their major existence, because Rahu and Ketu have a lot of existence in the Kali Yuga and they play major roles in the spiritual lives, in the studies which we are studying right now. In fact, in every work, Rahu has more play to डू इन दी कलयुगा. जो भी कोई भी काम हो रहा है अपने प्रोफेशन में, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, इट्स कमिंग टू यू थ्रू राहु इन सम और द अदर वे. ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड yes. Okay, we'll study this paragraph again. That is about Rahu Ketu, the cosmic and the mysterious energy, so that you can just take a revision about what is Rahu and Ketu. So Rahu, Ketu have ability to alter the working of other planets. They weaken the planet's significations and create troubles. So ultimately, Rahu, Ketu एक malefic planets हैं, तो उनका काम जहाँ पे भी वो बैठे हैं, अगर वो किसी planet के साथ बैठ गए हैं, तो उस कहीं ना कहीं ट्रबल तो लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, उसके सिग्निफिकेट प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम्स तो वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे by default. Okay, and sometimes they can give good results because Rahu and Ketu are cosmic planets. So good results भी देंगे, कहीं ना किसी significance को बढ़ा भी देंगे. That will depend upon the placement where they are sitting with the planets. फिर उसका वो किस राशि में बैठा है, वो सारी चीजें जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें समझ आएगी. But yes, ये दोनों तरीके से काम करेंगे. They have the ability to give you benefits, they have the ability to give you trouble. So trouble is something very mandatory attached with the Rahu Ketu because of their malefic nature. Have major roles in awakenings. Rahu is future and Ketu is past. Rahu is your future, like the way आपको जो एक पुश मिलता है, जो आपको काम करने का पुश मिलता है, that comes from Rahu. And Ketu is your past knots. Rahu, your past life karma is brought by Ketu, and Rahu settles it in present to push native into the future. They are called karmic planets because it's due to Rahu and Ketu only that a soul receive past life gifts and problems, settle them down, and move on as soul ascension journey. जो ये सोल एसेंशियल जर्नी का एक वर्ड बना है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा लोग बोलते भी हैं, बट वेयर दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम राहु एंड केतु's working in your life. Until these planets are not giving you this, your soul essential journey will not start. They also be a medium in traversing of souls. So soul traversing का एक बहुत मीडियम है ये, एंड इसके ऊपर मैंने एक थीसिस भी एक डाली थी. दो आई डू नॉट पुट थीसिस ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट मैंने जब राम जी का राम प्रतिष्ठा हुई थी तो उस पे वो कैसे एक एब्सोल्युटली मैजिकल योग बन रहा था, जिसमें कि राहु एंड केतु वाज द मीडियम ऑफ द ट्रैवर्सिंग ऑफ, ये पूरा काम राहु एंड केतु की वजह से हुआ है जो राम की वापस प्राण प्रतिष्ठा की गई है बाय मोदी. आई विल कम टू दैट. आज मैं आपको उस चीज के बारे में एक छोटा सा व्यू भी दूंगी कि कैसे. ठीक है, then they are always 180 degrees apart. Rahu Ketu performs as per the zodiac sign in which they are placed. And also, if they are sitting with any other planet in horoscope, they merge with their energy to give effects in life, positive or negative. Rahu and Ketu does not have lordship of any zodiac sign, but have their मूल त्रिकोणा, that is their comfortable position zodiacs. So उनका जैसे हमने देखा कि कोई भी planet like Jupiter है, तो उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो उसके कौन से हैं जोडियक्स, सैजिटेरियस और पाइसेस है. तो ऐसा राहु केतु के साथ कुछ दिया नहीं गया है, बट उनकी कुछ कंफर्टेबल जोडियक्स बनाए गए हैं जिसको हम मूल त्रिकोणास कहते हैं. और वही आपको ऊपर मैंने जब आपको दिए थे, जैसे कि क्वेरियस और वर्गो जो होता है वो राहु के लिए काफी कंफर्टेबल पोजीशन होती है. तो ये कंफर्टेबल पोजीशन है, बट इनके लॉर्डशिप्स नहीं है. ओके, वो जिस राशि में बैठते हैं उसके जैसा रिजल्ट देते हैं. Spiritually, Rahu is the drive, opening awareness towards Shiva. And Ketu is the state zero, that is mergence with Shiva. Okay.
So Rahu is the navigation, consciousness, and Ketu is the insight, subconsciousness. जो आप कॉन्शियसली करते हो वो राहु है, वो आपका नेविगेशन है कि मुझे ये करना है, मैं ये चाहती हूँ, मेरे अंदर ये लाइकिंग है, अब मेरा मन है कि मैं ये चीज करूं. दैट इज राहु. आप जब उसको करके उसकी प्राप्ति करते हो वो केतु होता है. दैट इज द स्टेट जीरो. अगर आपके मन में मुझे ये जानना है, मुझे जानना है गीता में क्या लिखा है, मुझे जानना है इसमें क्या लिखा है, दैट फोर्स इज राहु. पर जब आप उसको पढ़ लेते हो, उसको रिलेट कर लेते हो, जब आपको एक एलिवेशन फील होता है, आप कहते हैं ना हमें जब नॉलेज आ जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, हम स्टेट जीरो पे आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, या फिर हमें एक समझदारी हो जाती है, हमें बेसिकली हम उसको एलिवेशन कहते हैं. वो एलिवेशन जो है वो मर्जेंस विद शिवा के जैसा होता है. दैट इज कॉल्ड केतु. राहु इज द राहु इज द इनटेक एनर्जी एंड कंजम्पशन. जो आप लेते हो, खाते हो, जो आप मुंह के अंदर भी डालते हो ना, खाना खा रहे हो, वो राहु की वजह से है. राहु इज एट योर माउथ. ओके. And is the and जो flushing है, in fact this is I am telling in a very literal meaning also, that your system of your body, the food which you intake and then the food which goes out releasing your as a waste of your body is केतु. but उस waste से जो आपकी body को nutrients मिले, जो चीजें मिली, वो केतु ने ही दी है आपको. That's why, let me switch on the camera. That's why Ketu sits at your tailbone, at your root chakra. And the shape of Ketu, the snake, the serpent shape, जो कि last का serpent shape होता है, जिसको हम dragon's tail बोलते हैं, वो हमारी ये ना इसके जैसे होता है, intestine के जैसे होता है. सो केतु का जोर यहाँ पे है, क्योंकि केतु का वैसे भी सर तो है नहीं, ये पोर्शन तो केतु का है ही नहीं. तो केतु का वर्क यहीं से ही शुरू होता है आपकी लाइफ में. दैट्स वाई अभी आगे जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि केतु क्यों उसको स्पिरिचुअलिटी का कारक, एक नेगेटिव, एक असुर को क्यों दे दिया गया, एक स्पिरिचुअलिटी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे दी गई उसको. दैट विल कम टू नो, बिकॉज ये नहीं है उसके पास. एंड ये मैंने आपको शायद एक इसका दिया भी था कि छिन्नमस्ता जब हमने पढ़ी थी, राइट. जब छिन्नमस्ता महाविद्या पढ़ी थी हमने, जब उसके बारे में किया था, तब मैंने कहा था दैट शी separates your head from yours. She's beheaded. She says वो राहु की एनर्जी में क्यों रहती है, क्योंकि she gives the example, जब तक आपका ये राहु नहीं कटेगा तब तक आप केतु में नहीं स्टेप कर पाओगे. दैट इज धूमावती. ओके. सो ट्राई टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स. एंड थोड़ा सा डीप है ये चीजें, एकदम से रिलेट नहीं कर पाती क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा लॉजिक पे ज्यादा चलता है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट बीइंग इमेजिनेटिव विल बी मोर हेल्पफुल in many of the things, in relation of the things. Okay. Then Rahu is the beginning. Rahu is the beginning and Ketu is ending. Rahu and Ketu are the energies of Tantra Shakti. They are the mediums of magics and possessing. इन्हीं की एनर्जी से ये सब चीजें चलती हैं, और कोई प्लैनेट नहीं है इसमें. एक ही प्लैनेट है, दैट इज सैटर्न आल्सो इज देयर इन दिस. दे हेल्प देम. बेसिकली दे आर नॉट तंत्र मंत्र. सैटर्न इज नॉट तंत्र मंत्र, बट सैटर्न सपोर्ट्स. विदाउट सैटर्न सपोर्ट ये राहु केतु ये तंत्र मंत्र कर नहीं पाएंगे, मंत्र नहीं, तंत्र शक्ति कर नहीं पाएंगे, या कोई पोजेसिंग वाले टाइप की एनर्जीज मीडियम्स कर नहीं सकते. In fact, mantra shakti to manifest takes medium through Rahu Ketu. So there are two mediums, mantra shakti and tantra shakti. Tantra comes from the Kundalini Shakti. Mantra comes from Rahu, Shiva. Okay. So मंत्र शक्ति जो है वो आज के युग में चलने वाली है. ठीक है. तंत्र को तो लोग गलत वे में सोचते हैं, बट गलत नहीं है. इट इज यूज फॉर द मैनकाइंड ओनली. बना तो ये मैनकाइंड के हेल्प के लिए था, बट क्या होता है ना कि जब इतनी इंपॉर्टेंट पावर है ना, वो जिसके हाथ में आ जाती है, वो ह्यूमन प्रवृत्ति है कि उसका मिसयूज कर लेते हैं. दैट्स वाई. ठीक है. बट अदरवाइज तंत्र इज नॉट एट ऑल बैड. इट इज दिस इज अ boon given by Shakti to us for some important and crucial works, but not for taking advantage. इन महाभारत शकुनी मामा वॉज अ प्रॉपर राहु एनर्जी. इसका एग्जाम्पल मैं आपको, जब भी आप महाभारत पढ़ो, आप गीता पढ़ोगे, मतलब महाभारत बेसिकली, उसमें जो शकुनी का रोल है, उसमें जो उन्होंने किया है, जिस तरह की उनके टैक्टिस हैं, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट. मतलब ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस इनटू रॉन्ग पॉलिटिक्स.
वो सब चीजें ठीक है, बट जो इंटेलिजेंस थी उनके अंदर पोजेसिंग पावर भी थी। आपको पता है वो पोजेस कर सकते थे, वो बहुत चीजें कर दे सकते थे, वो उनमें प्रॉपर राहु एनर्जी थी। पीपल हु आर इन, आपको अभी पढ़ेंगे ना जब आगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी परस्यू करेंगे, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट Karanas, the Panchanga, you will come to know that Panchanga has this Karana which is related to Shakuni, and वो अच्छा नहीं होता. People born in that Karna or is not termed very good. They are not very good people. मतलब उनका कुछ ना कुछ वो गलत करते हैं लाइफ में. People who are in Rahu or Ketu dashas are most vulnerable to catch dark energies. But at the same time, if Rahu is placed in a way that gives person spiritual awakening, then this becomes strong yoga that makes person psychic to read the energies and identify them. सो जैसा कि ये आपके एक डार्क एनर्जीज को एक्टिव करते हैं कि आपकी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, उतना ही ये पर्सन, अगर ये ऐसी पोजीशन में प्लेस्ड है और पर्सन स्पिरिचुअल है, सो ये आपको अवेकनिंग दे देते हैं कि ऐसा पर्सन इतना अवेयर हो जाता है कि उसके ऊपर अगर कोई भी टाइप का एनर्जी आता है, सो दैट पर्सन कैन रियली आइडेंटिफाई दैट एनर्जीज. सच पीपल आर फाउंड ardent devotee of Shiva, Kali and Krishna. मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, it's not written anywhere, बट आई हैव सो फार सीन कि जो लोग, मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से चीजों को ज्यादा रिलेट करती हूँ इसलिए मैं लिख देती हूँ दैट शिवा, काली, दुर्गा एंड कृष्णा की एनर्जीज जो है, दे आर वेरी मच इन इन सिंक. एंड इनके जो भी उपासक होते हैं, डिवोटीज होते हैं, इनमें मैंने मोस्टली देखा है दे हैव सम काइंड ऑफ इंट्यूटिव पावर, दे वेदर दे आर एस्ट्रोलॉजर्स और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर दे डू, देयर ओरिजिनल वर्क कैन बी समथिंग एल्स, बट दे इफ दे आर, दे विल हैव दिस इंट्यूशन पावर. उनको एक रीड करने का एनर्जी का होता है. Okay, the main cosmic energies behind every psychic reader is Rahu. Always remember, एक साइकिक रीडर के पीछे एनर्जी, जो ड्राइविंग फोर्स, ड्राइवर हमेशा राहु ही होगा, कभी केतु ड्राइवर नहीं बनेगा. बट केतु मस्ट बी कंबाइनिंग विद सम अदर नवग्रहस इन देयर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट. बट केतु आपको उसको, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी है ज्यादा. अगर हम देखें, कोई कुछ बोलना चाहता है मेरे? नहीं मैम. अच्छा, सो मैं कह रही हूँ कि केतु का क्या है ना कि केतु इज इंटरनल, तो वो हमें दिखता नहीं है. आई टेल यू, केतु इज इनविजिबल. आई टेल यू सिंपली, आप केतु को रिलेट करो, इट्स इनविजिबल एनर्जी विच इज समवेयर इनसाइड यू. आपकी बॉडी इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इट. सो आपके पेट के अंदर जो चल रहा है, आप उसको सिर्फ फील कर पाते हो, आप उसको देख नहीं पाते. बट जो फूड आप खा रहे हो, आप उसको देख पाते हो, आपके सामने होता है, इतना टेस्टी फूड होता है, आप उसको देख पाते हो. यू आर एबल टू, उसको पहले देख के आप फील करते हो, फिर आप खा के फील करते हो. सो ये ड्राइविंग फोर्स हमेशा राहु ही रहेगा, और जो उससे मिलेगा, जो उससे इनटेक होगा, जो आपके अंदर जाएगा, वो हमेशा केतु होगा. तो इसलिए क्या होता है कि राहु आपको कॉन्शियस लेवल पे इंट्यूटिव बनाता है. इसलिए मैंने इसको लिखा साइकिक रीडर्स, बिकॉज हमेशा जो हमारी जर्नी एक नॉर्मल ले मैन के टर्म पे, कोई भी हमेशा सबकॉन्शियस लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकता. एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्शियस लेवल. सबकॉन्शियस कॉलिंग हो सकती है आपके अंदर, कि वो इंटरनल फीलिंग्स हो सकती है कि मुझे ऐसा क्यों फील है, उसके क्यों लग सकते हैं, बट आपका कॉन्शियस लेवल ही उसको रीड कर सकता है, उसके लिए आपको आगे बढ़ा सकता है. सो राहु ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं. फिर आप जब आंसर्स ढूंढते हो, इट्स लाइक केतु आपको अंदर से फील करा रहा है. ठीक है, अब मैं इसको अपनी ही बॉडी से रिलेट करती हूँ. आपको अंदर भूख लग रही है, ठीक है, योर स्टमक इज एम्प्टी, यू फीलिंग इट. केतु इज टेलिंग योर स्टमक इज एम्प्टी, प्लीज गिव मी सम फूड. एंड वो क्या करेगा, आपके टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव कर देगा, राहु को एक्टिव कर देगा. मुझे ये खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे समोसे खाने हैं. आपको भूख की वजह से दैट टेंडेंसी विल कम टू यू, एंड आप वो चीजें कंज्यूम करोगे, आप कुछ खाओगे, आप टेस्ट लोगे, आप प्लेजर लोगे उसके खाने का. तो अब वो अंदर जब जाएगा, तो केतु शांत होगा और केतु का काम शुरू होगा. सो आप इसी प्रोसेस को अपनी लाइफ के साथ लगा दो, आप अपनी और चीजों के साथ लगा दो, तो आपको हर तरह से समझ आ जाएगा कि राहु केतु कैसे एक दूसरे के साथ ज्वेलअप होके काम करते हैं. कभी राहु भी केतु का काम कर रहा होता है, कभी केतु भी राहु का काम कर रहा होता है. तभी इसको हमने 180 डिग्री एक्सेस पे लिया है, दैट दे कैन शफल देयर पॉइंट्स, दे कैन नेवर मर्ज. वो भी होता है, हम आते हैं जब मर्जेंस ऑफ राहु केतु होता है, तब उसको हम सरपेंट
बोलते हैं कि दैट सर्पेंट, एक सर्किट कंप्लीट हो गया, वो सर्पेंट योग हो जाता है. बट दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट, बट they can shuffle their positions, they can flip like that. Okay, so always try to understand राहु केतु in that way. So कभी कभी हमें ना राहु की सिग्निफिकेंसेस केतु में भी दिखने लगती है और केतु की सिग्निफिकेंसेस राहु में भी दिखने लगती है. You will see this with the experience, with the observations in your life. Okay. All right, so let's move to the astrological characteristics of Rahu. Rahu is the north node of moon, which is future, ruler of Kali Yuga, you can say, or you not ruler basically, but the influencer of Kali Yuga, cosmic frequency. And Kali Yuga में तो Saturn का भी जोर है. So we cannot only say Rahu, but Rahu has the driving force in Kali Yuga. Okay, so suitable day is Saturday again for Rahu. शनि का ही दिन होता है. Color is black, gray. Air element, जोडियक्स टॉरस, जेमिनाई, ये सूटेबल जोडियक्स हैं. टॉरस में भी अच्छा होता है राहु, जेमिनाई में भी होता है, वर्गो में भी होता है, एक्वेरियस में होता है. और मूल त्रिकोण ज्यादातर माना जाता है एक्वेरियस को ही. राहु का मूल त्रिकोण जोडियक इज मोर ऑफ एक्वेरियस. बट इफ राहु इज प्लेस्ड इन टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, एक्वेरियस, तो इट्स ऑल्सो सुटेबल साइंस. ओके. राहु डिनोट्स इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, artificial intelligence, digital devices, information technology, computers, world of automation. यही चल रहा है आसपास हमारे और यही है. ठीक है. राहु इज द एक्सपेंशन एनर्जी. राहु का काम है, एक है जुपिटर एक्सपेंशन एनर्जी और एक है राहु. बस दोनों में फर्क क्या होता है कि राहु इज नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस. नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस कहने का मतलब क्या हुआ? लाइक टेक्नोलॉजी, ये चीजें जो आपकी नॉन लिविंग है, उनकी सिग्निफिकेंसेस को एक्सपैंड करना. जुपिटर दोनों देता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मतलब आपकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है, परिवार, खुशी, इंटरनल, एंड एक्सटर्नल विच इज द नॉन लिविंग, वो भी चीज देता है. ओके. देन इट कैन एक्सपैंड वॉट एवर इट गेट्स जॉइंट विद. वैसे राहु जिसके साथ बैठेगा उस चीज को, उस सिग्निफिकेंस को, उस राशि को, उस प्लैनेट को एक्सपैंड ही करेगा. जुपिटर के साथ बैठ गया तो जुपिटर को ही एक्सपैंड कर दे. दोनों एक्सपैंडिंग प्लैनेट्स है, दोनों ही एक्सपैंड करने लग जाएंगे. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. आप अपने राहु को देखो कहाँ बैठा है, उसकी राशि को समझो, आपको समझ आएगा कि राहु आपको कहाँ बढ़ा रहा है. सो इट वर्क्स लाइक कैटलिस्ट. Whichever zodiac and house it sits, it creates impact in life in those areas negatively or positively that needs to be analyzed. अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव, वो उसके एनालिसिस आपको करनी होगी, लेकिन बढ़ा रहा है समझ लो बस वहां पे. बट डेफिनेटली सिंस इट्स मैलेफिक इट विल हैव सम प्रॉब्लम. अगेन ये चीज अटैच रहेगी, भाई मैलेफिक है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगा. ऑन पॉजिटिव साइड राहु गिव्स इंटेलिजेंस, शार्प एंड मैनिपुलेटिव माइंड. It gives the drive to achieve things and works as the passionate planet. It creates passion and drive in the individual. That's why Rahu prominent person achieves many things, but at the same time Rahu is not placed well in much positive situation. It creates bad obsession and greed. So जितना ये person को आगे बढ़ा सकता है, उसको सक्सेस दिला सकता है, बहुत सारे अचीवमेंट्स ला सकता है, बट एट द सेम टाइम वो उसका ऑब्सेशन बढ़ा सकता है, ऑब्सेस्ड कर सकता है, उसको ग्रीडी कर सकता है. उसको इतना मिल गया, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये चीजें कर सकता है. विच एट द सेम टाइम मेक्स द पर्सन फॉल बैडली. और इसी वजह से, ऐसे ही चीजों की वजह से पर्सन एक मोमेंट पे आकर के बहुत ही बुरा गिरता है. लाइक आप गैम्बलिंग में देखो, स्टॉक मार्केट्स में देखो, क्या होता है, लोग एकदम से गिर जाते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली राहु. सो राहु इज कैपेबल ऑफ टार्निशिंग इमेज एंड आइडेंटिटी. उसके पास बिल्कुल पावर है इस कलयुग में आपकी इमेज को खत्म करने और बना देने की. राहु इज एक्चुअली इल्यूजन एनर्जी, सो इट कैन मैनिपुलेट द इंडिविजुअल इटसेल्फ. सो इल्यूजन जो है ना, जो चीज इल्यूजन है, चेंजेबल है, आपने अभी देखी, उसके बाद वो दोबारा परसेप्शन में वो कुछ और सी दिखेगी, जो कि चेंज होती रहती है, जिसका कोई एक आकार ही नहीं है. गाया राहु इज माया. राहु इज इल्यूजन एनर्जी, सो इट कैन मैनिपुलेट द इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल को खुद ही मैनिपुलेट कर देगी.
स्पेशली अभी जब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज असेंडेंट एंड ये सब चीजें, अगर आपका राहु वहां पे है ना, आपके लगन हाउस में राहु है, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए लगन लॉर्ड के साथ या आपका इसके साथ। तो आप, राहु आपको मैनिपुलेट कर सकता है लाइफ में, आपसे चीजें गलत भी हो सकती हैं, आपको कभी कभी काफी चीजों की सच्चाइयां पता भी होंगी और नहीं भी पता होंगी। तो इट्स लाइक राहु आपको वो जगहों पे लेके जाएगा जहाँ पे उसका बेनिफिट है, वो आपको सच्चाइयां भी दिखाएगा, वो चीजें भी रिवील करा देगा जो आपको पता नहीं होगी, लेकिन उसका मोटिव क्या होगा ना, वो चीज समझने वाली बात होगी। तो मोटिव वो उसकी राशि और उसके साथ के प्लैनेट्स बताते हैं कि मोटिव क्या है। ठीक है। सो राहु इज कैपेबल ऑफ, हो गया, राहु कैन मेक यू इधर रीच टू द ट्रूथ, इफ वही आ गया, रीच टू द ट्रूथ इफ इट इज फॉर इट्स बेनिफिट, अदरवाइज इट कैन डिस्गाइज यू एंड हाइड ट्रूथ, मेकिंग द पर्सन लिव इन इल्यूजन। Rahu is the manipulator, gambler, achiever, most intelligent, can consume immense knowledge. Rahu is the growth and expansion energy. But because excess of Rahu, expansion is explosion. राहु का एक्सपेंशन जब बढ़ता है तो वो एंड होता है एक्सप्लोजन में, हमेशा याद रखना ये चीज है। Therefore, राहु इज द एक्सप्लोजन एज वेल। स्पेशली अगर राहु किसी मार्स के साथ बैठा है या मार्शियन राशि में बैठा है तो थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाता है। इफ राहु इज वेल चैनलाइज्ड इट कैन मेक द पर्सन विशनरी। अब देखो, राहु को चैनलाइजिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि राहु की एनर्जी क्या है, इट्स लाइक मैं बताऊँ इसको टैरो में बोलती हूँ, राहु की एनर्जी पता है क्या है, राहु इज अ मैजिशियन। जो आप टैरो में मैजिशियन कार्ड देखते हो ना, वो राहु है। अब मैजिशियन तो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, स्किल्स है उसके पास, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना आपका काम है। और अगर आपने कर लिया तो आपको विशनरी बना देगा राहु, क्योंकि फिर वो आपके केतु को एक्टिवेट कर देगा। और केतु फिर वो तो आपको पता है, मैंने बताया वही प्रोसेस से आप बन जाओगे। ठीक है। सो सिंस वी अंडरस्टूड अबव, राहु इज कॉस्मिक एनर्जी। हमने ऊपर मैंने बोला था राहु इज कॉस्मिक एनर्जी, तो इट इज ऑल टाइम प्रेजेंट, आपके साथ हर टाइम प्रेजेंट है, वो आपके अंदर भी है। सो वी कैन नॉट एलिमिनेट राहु बट कैन चैनलाइज इट। इफ राहु इज ट्राइड टू एलिमिनेट, जिसको हम कहते हैं शांति करवा देना, इट विल फाइंड द वे टू ट्रबल यू इन मोर एडवर्स वे, मतलब कुछ ना कुछ आपको और एडवर्स वे में वो फिर अफेक्ट करेगा। ठीक है। सिंस राहु's energy sits above crown chakra, it rules over your intellect and whatever knowledge, wisdom, enlightenment, awareness comes. It is due to Rahu and it converts into Ketu. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी जो ऑल टाइम एनर्जी है ना, जो आपको ड्राइव कर रही है यहाँ क्राउन चक्रा से, वो राहु ही है। बट जब वो आपको एलिवेट कर देती है, जब आपको नॉलेज दिला देती है, जब आपको एनलाइटमेंट दिला देती है, तब ये राहु की एनर्जी रिप्लेस हो जाती है केतु की एनर्जी से। देन केतु इज हियर बिकॉज इट्स एन एनलाइटेंड स्टेट। Try to understand, this is very very technical, and I think with your journey you will be able to feel it, with your own experiences you will be able to feel it, but just keep it here in your mind कि हाँ आपके कॉन्शियस लेवल पे आप इसको समझ सकते हो कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा होता है। ठीक है। Then Rahu is a foreign element that facilitates to bring outside things inside or let you know about different realms and multiverse. So जो बाहर से चीजें अंदर आती है, अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी, जो चीजें आई पहले इंडिया में, वो कहाँ से आई, सब मैक्सिमम ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडिया गेन फ्रॉम आउटसाइड, दो नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क्स, बिकॉज आई टेल यू, एक चीज मैं बताती हूँ, इंडिया इज केतु रूल्ड रीजन। आई टेल यू, चंद्रयान कहाँ लैंड हो पाया, केतु की सरफेस, साउथ नोड ऑफ द मून। पहले इन्होंने दूसरी जगह पे करने की कोशिश की थी, फेल हो गया था। इंडिया इज अ केतु रूल्ड और यू कैन से केतु इन्फ्लुएंस्ड लैंड, इसलिए चीजें पास्ट से कितनी ज्यादा, हमारा कितना यू नो चेरिश्ड और कितना ज्यादा घनिष्ठ लिटरेचर है, कितना ज्यादा माइथोलॉजी, कितनी ज्यादा फिल्ड है, एवरीथिंग इज सो मच फिल्ड with lot of things. Even what we are studying is a part of Ketu. So राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट है, अब आया बाहर से, अब चीजें बाहर से जो ट्रेड हुआ, इंडिया ने सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी ली, अब इंडिया देखना है इस चीज को यूटिलाइज। आई टेल यू इन द अपकमिंग टाइम्स इंडिया विल बी द लैंड व्हिच विल
still be there. बाकी सब में प्रॉब्लम्स आएगी. इंडिया विल बी द लैंड. मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे बहुत चीजें खराब होगी, हो ही रही हैं, सब भ्रष्ट ही हो गया है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये लैंड रहेगा. एंड इट्स गुड द पीपल आर प्रिजर्विंग द नॉलेज. अब हमने क्या किया ना, हमने अपने केतु को मिक्स कर दिया है राहु के साथ टू वॉक विद द वर्ल्ड. सो राहु इज अ फॉरेन एलिमेंट. तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं कई बार, क्योंकि हर कोई राहु के पीछे भागता है. मैं सिंपली बताऊं तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई पर्सपेक्टिव्स नहीं देखते, तो वो बाहर चले जाते हैं, बाहर से स्टडीज करते हैं, जाकर के बाहर जाकर के सेटल हो जाते हैं, उनको अच्छी चीजें मिलती हैं. बट अब ये चीज ब्लेंड हो रही है यहाँ पे. सो जो चीज बाहर से आ रही है, फॉरेन एलिमेंट है, वो केतु है. अब इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगा सकते हो कि जो चीज बाहर से आ रही है, अब आपके लिए बाहर क्या होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, समथिंग विच इज कमिंग एज अ फॉरेन एलिमेंट इन योर लाइफ. आपका लवर, आपका हस्बैंड भी आता है, आपका पार्टनर भी बाहर से ही आता है, बट इट इज ड्रिवन बाय केतु. अगेन, पकड़ा केतु ने है क्योंकि वो पास्ट लाइफ से देगा, बट आपकी इस बर्थ के लिए वो बाहर से ही आया ना. आपको तो नहीं पता था, आप इस बर्थ में तो उसको नहीं जानते थे. सो आपके जो फॉरेन एलिमेंट्स, जिनको खाना बाहर का पसंद है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स रिलेटेड विद द फूड. जो खाना बाहर से, मतलब जैसे दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंटल फूड्स पसंद है, डिफरेंट क्यूजिन्स पसंद है, ये सब राहु है. जो चीजें फॉरेन है आपसे, डिफरेंट है आपसे, वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं. ठीक है. सो दैट इज अगेन द रेल्म्स एंड मल्टीवर्स की जो थ्योरी है, वो भी राहु से ड्रिवन है. आप बाहर का क्या, अभी आप कुछ जो पढ़ रहे हो, आप स्पेस से रिलेटेड पढ़ रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हो, वो एक तरह से बाहर की नॉलेज नहीं लग रही कि जैसे हाँ प्लैनेट्स तो दूर है ना हमसे, इट इज इन द कॉस्मॉस, तो वो हमारे लिए बाहर की एनर्जी हो गई. वो आपको राहु ही दे रहा है, फिर आप इसको केतु में कन्वर्ट कर रहे हो. आई थिंक दिस विल बिकम रियली डीप, बट ट्राई टू जस्ट रिलेट इट. ठीक है. सो Rahu is greed, passion, and obsession, hallucination, deceptive, desirous, wishful, curious. ठीक है. सो इसमें मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट, ये तो हो ही गया, ग्रीड देता है, पैशन देता है, ऑब्सेशन होता है, डिसेप्टिव होता है, आपको सच्चाई से कभी कभी दूर रखता है, तो धोखाधड़ी करवाता है, ये सब चीजें. डिजायरस होता है क्योंकि वही पैशन होता है उसके अंदर. विशफुल होता है, ये चाहिए ये चाहिए. क्यूरियस होता है जानने के लिए. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट हेलुसिनेशन वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा आपके पास जो एज अ काउंसलर, एज अ मेंटोर, आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो रिलेटेड टू द मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी. लोग मेंटली ज्यादा डाउन होते हैं. मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, जो चीज जितनी हो रही ना उससे ज्यादा हम मेंटली परेशान होते हैं. तो वहां पे ना राहु केतु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आजकल ना हेलुसिनेशन एक बीमारी भी होती है. लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं कि उनको कुछ का कुछ दिखने लगता है, दैट दे परसेप्ट स्टार्ट परसीविंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. सो दैट इज राहु. दैट मेंटल इनएबिलिटीज आल्सो इज राहु. तो आप देखोगे कई बार जो जिनका मून राहु के साथ है या केतु के साथ है, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. कई बार मेंटली दे बिकम डाउन, दे बिकम रियली, अजीब हो जाता है माइंड उनका, लिटरली. उनको अजीब कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब वहां पे उनको लाइफ में कुछ समझ नहीं आता, और वो खुद नहीं समझ पाते कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो वो चीजें भी होती है. ऐसा कभी कॉम्बिनेशन आपको किसी के चार्ट में दिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट दिस पर्सन जस्ट नीड्स टू उसका केतु एक्टिव कर दो, मतलब कहते हैं ना, उसको स्पिल आउट करवा दो, उसको रिलीज करवा दो. दैट इज द ओनली वे ऑफ रिलीजिंग आउट द एनर्जी, क्योंकि रिलीज करने से ही वो चीज, तभी सारे जो ऐसे हम टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो एक चीज बोलते हैं, रिलीज इट, जाने दो, सरेंडर कर दो, रिलीज कर दो. वो कहाँ से आ रहा है, वो इन्हीं एनर्जी से आता है. बिकॉज ये रिलीजिंग जब तक नहीं होगा, जब तक केतु एक्टिव नहीं होगा, तभी वो रेमेडीज दे देते हैं, आप एक काम करो, आप ओम नमः शिवाय करो, आप ये करो. वो आपका केतु एक्टिव कराना चाहते हैं बेसिकली आपकी बॉडी में, आपके अंदर, ताकि आप उसको रिलीज कर पाओ. वो रिलीज हो जाएगा तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन थोड़ा शांत हो जाएगा. वो खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ. तो पर्सन कई बार आपसे ये भी पूछता है कि आप, क्या ये चीज कभी खत्म हो जाएगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये इसके साथ टेम्परली हो रहा है. टेम्परली हो रहा होगा तो हो सकता है वो ट्रांजिट से हो रहा हो. परमानेंट होगा तो उसके चार्ट में ऐसा योग ही होगा, इसका मतलब वो परमानेंट है, उसको पीरियोडिकली ऐसा होता रहेगा. तो दैट इज मोर सजेस्टिव कि वो अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बना ले कि वो ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे, अपनी कुछ चीजों को फॉलो करे, रिलीजिंग में ज्यादा ध्यान दे, पकड़ के ना रखे. ठीक है. एंड राहु केतु, या मेरे साथ निकिता. ऐसा हो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा हाँ, अरे हाँ,
यस विकिता तो है, सी विकिता, अब आपको जवाब मिल रहा होगा, है ना? हाँ डेफिनेटली, मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब जहाँ पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राइट। सो मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपको सिर्फ रिलीज कराया उस टाइम पे, हाँ हाँ, आपने है बोला था ना? सरेंडर कर दो, सब सरेंडर बस कर दो। सरेंडर कर दो आप, मैंने कहा था आप मेरे पे, आप कभी कभी एक मेंटर को अपने ऊपर लेना पड़ता है कि आप मेरे पे भरोसा रखो और सरेंडर कर दो, आपको फायदा ना मिले तो बताओ। क्योंकि आप उस हम्म समय क्या होते हो ना, एक मेंटर उस समय वो जुपिटर और वीनस का काम कर रहा होता है उसके लिए। और मैं आपको हम्म। बताऊँ, जुपिटर और वीनस रिलीज कराते हैं राहु केतु की एनर्जीज को। हाँ। तो वो आप क्या, अब मैंने कहा आपको, कहा माँ काली को सरेंडर करो, आप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप छोड़ो कि आप बस ये कह दो, अब आपने बोल दिया ना, अब ये हो जाएगा, बस आपको कुछ ट्रबल नहीं हम्म है, और वो हो हम्म जाएगा। वो क्या हम्म। थी, वो आपकी हैवी अंदर एनर्जी थी, जो कि अंदर एक तरह से राहु होल्ड करके बैठ रहा था और आपको हेलुसिनेशन में डाल रहा था कि ये हो हाँ जाए, ऐसा हो जाएगा, ये होने वाला है, क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है। हाँ। तो लेकिन अच्छी राइट। बात ये थी, यहाँ पे हमें थोड़ा रिलैक्स मिल गया, क्योंकि आपके केतु मैं सब भी बेटर मानती हूँ जब भी मून के साथ होता है, क्योंकि राहु मून ना रिलीज नहीं करने देता, फिर और हम्म डिफिकल्ट। ऐसा पर्सन तो कई बार मेंटर को भी सुनता नहीं है, वो समझता है बेवकूफ है तो बस ऐसी प्रवचन बक रहा है, और कुछ नहीं। हम्म उसमें क्या होता है, क्योंकि वो राहु होल्ड करके बैठा है, वो रिलीज नहीं करने देता। नाउ हम्म राहु एंड मून कॉम्बिनेशन, तभी मैंने इसको हेल्यूसिनेशन लिखा है, कि ऐसा पर्सन हम्म रिलीज नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। केतु मून इज वेरी बेटर, वेरी मच बेटर, उसमें बस उसको एक गाइडेंस चाहिए होता है, एक दिशा प्रदान करने वाला चाहिए होता है, और अगर उसने मान लिया, जो कि मानने की टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि केतु इंटरनल फीलिंग है, वो आपको फील करने देता है आपके मेंटोर को कि अच्छा हो सकता है ये सही कह रहा हो, मान लो इसकी बात, और पर्सन रिलीज हो जाता है उस फियर से, उस एग्जाइटी से, उस चीजों से। ठीक है। सो एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन, आप जब किसी को कर रहे हो, तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे किसी को भी काउंसिल करने के लिए, बिकॉज आई टेल यू, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, हम सिर्फ रीडर्स हैं, मीडियम्स हैं, और कुछ नहीं। बट हाँ, एज अ रीडर, एज अ मीडियम, हमारे काम है, अगर आप तक ये पर्सन आया है तो भगवान ने ही भेजा है आपको, कि आपको इसके साथ ये करना है, आपको उसको ये हेल्प करनी है, तभी तो आपको ये नॉलेज दी गई है कि आप उसको रीड करो और उसको बता सको, रास्ता निकाल सको, उसका सहभागी बन सको, और निकाल दो। ठीक है। तब तभी सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी होता है। राहु इस युग में आपका फिर भी, जुपिटर और वीनस अच्छा होना जरूरी होता है, तभी आप बन पाते हो, क्योंकि वो आपको एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बनाता है, तभी आप कर पाते हो ये काम, नहीं तो आपके, मैं आपको बता रही हूँ सच में, विद लास्ट 5.5 years, इट लुक्स लाइक कि बहुत मजा आता है ये सब प्रोफेशन में, बट आपको जब दिन भर परेशानियां ही सुनने को मिलती है, फ्रॉम मॉर्निंग, जब आप आंख खोलते हो रात में आंख बंद करते हो, आप सिर्फ लोगों की परेशानियां ही सुनते हो, और कुछ नहीं होता। वो इसलिए एनर्जीज बहुत कभी कभी मेंटोर के ऊपर, एक हीलर के ऊपर बहुत हैवी हो जाती है, और कभी कभी वो एकदम डाउन चले जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू लिसन, मतलब इतनी इतनी चीजें आती है, जब लाइफ के मामले में चीजें आती है ना, सच में उस टाइम पे ना बहुत लो फील होता है। बट इसीलिए स्पिरिचुअली आपका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन ही हैंडल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। आप 2 से 3 इंसान की परेशानियां सुनोगे ना दिन में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है। सो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं जानने के लिए वहां पे। ओके। देन करियर, राहु इज सिग्निफिकेटर ऑफ फॉरेन लैंड, advancement in it, advancement, IT, technology, astrology, research, psychic careers, smartphone, internet, computers, ये सब राहु है। राहु is most important to see for foreign settlement or making money from foreign process. In today's times, Rahu is also making money through online works. राहु आपका अच्छा होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन आज की डेट में काम करना चाहते हो, और करना तो ऑनलाइन पड़ता ही आजकल, तो है ही, युग ये है ही इस चीज का। राहु गिव्स, तभी मैं राहु की शांति नहीं पसंद करती हूँ। राहु गिव्स गैम्बलिंग, अंडरवर्ल्ड, ब्रैकेट्स, ये सब चीजें भी राहु देता है, डिसेप्शन राहु देता है, तो उसलिए चैनलिंग जरूरी है। अदर ग्रेट प्रोफेशंस बाय राहु आर स्टॉक ब्रोकर्स, एयरलाइंस, एविएशन, इंजीनियर्स। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आई वॉन्ट टू जस्ट डिफर हियर, कि एयरलाइंस एविएशन राहु है, और मैंने कहा था जब केतु प्लेन टेक ऑफ करता है तो प्लेन केतु बन जाता है।
सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि जब आप एलिवेट हो रहे हो, क्योंकि केतु क्या है, मतलब वो प्लेन पहले चल रहा होता है, वो राहु की एनर्जी से चल रहा होता है, और जब वो टेक ऑफ करने लगता है वो केतु की तरफ बढ़ने लगता है। बट जो उसका एविएशन तो पूरा ही है ना, कंप्लीट इंडस्ट्री है, वो राहु के पास है, एयरलाइंस राहु के पास है। ठीक है। सो इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स governs wireless technologies like electronics, communication, जो आपका communication चल रहा है, जो wireless चीजें चल रही हैं, म्यूजिक सिस्टम्स, म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज राहु के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल कम टू दैट मंत्र वाला चीज, कि मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि क्या, क्यों, मतलब मंत्रास क्यों बोले गए राहु के टाइम पे। म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज, साउंड वेव्स, वेव लेंथ। अब जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो एक वेवलेंथ ही तो है, वो एक फ्रीक्वेंसी ही तो है जब आप बोल रहे हो मंत्र को, वो राहु के अंडर है। और जब आप, कभी मैंने कहा था सिर्फ मंत्र ज्यादा बेस्ट वे टू चैनलाइज राहुज एनर्जी। शिवा ने पंचाक्षरी दी है हमें फॉर दिस कलयुगा, टू डू इट, टू बैलेंस योर फाइव तत्वास। जिस दिन आपके फाइव तत्वास बैलेंस हो जाते हैं, आपकी लाइफ में आपकी बॉडी की एनर्जी ठीक हो जाती है, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं पर्सनली। तो वो कैसे होती है, जब आप उस वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे चैंटिंग्स करते हो, आपके मुंह से वो चीजें आपके थ्रोट चक्रा से निकलती है। दैट्स वाई मैंने कहा था, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा बोला गया, आप कई जगहों पे लिखा पाओगे हार्ट चक्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका रीजन बस ये है कि कोई हार्ट की सबसे पहले बनता है, बट फॉर माई परसेप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी द थ्रोट चक्रा। बट आई ऑलवेज टेक दीज टू टुगेदर, कि आपका हार्ट चक्र और आपका थ्रोट चक्र दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा वो तो सिर्फ थ्रोट चक्र ही क्रिएट कर सकता है आपका। आप बोल सकते हो, उसी से आपका साउंड आता है, उसी से आप राहु को पैसिफाई कर सकते हो थ्रू मंत्रास। ओके। So new inventions, radio, electrical instruments. Therefore, Rahu is mantra chanting, controlling by mantra and tantra and esoteric practices. Okay. Health, since Rahu is an airy planet, it affects Vata. वात जो होता है वो एयर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, वात पित्त कफ तीन होते हैं, इनका इस वात इज मोस्ट कनेक्टेड टू द, उसमें एयर एलिमेंट का होता है। राहु बीइंग ऑल अराउंड इज अ वायरल इन्फेक्शन, एंड द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ राहु इज कोरोना पैंडेमिक वेयर सैटर्न आल्सो प्लेड। अब मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। एक बात बताओ कि जब कोरोना का पैंडेमिक हुआ, कौन से लोग थे जो कि सिर्फ सुखी थे उस टाइम पे? बहुत सारे, एक ही दो इंडस्ट्री के लोग सुखी थे, एविएशन तो आईटी, डाउन, आईटी, आईटी, वर्क फ्रॉम होम। टेक्नोलॉजी, वर्क फ्रॉम होम। Who was living at that time? Only Rahu was living at that time, and Saturn was living at that time. Saturn तो खैर बहुत चीजों को प्रॉब्लमेटिक करता, हुआ ये अंडर सैटर्न ही था, बट राहु की चीजें लिव अप कर रही थी। ठीक है, राहु एंड सैटर्न राहु को बनने देता है, आई टेल यू। सो कोरोना हो गया, और मैं बताती हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत चल रही थी, उनका काम बहुत चला है। और फार्मास्यूटिकल में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राहु और केतु का। केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल, हर्ब्स, आयुर्वेदा और मेडिसिन के साथ काम करना इस केतु। सो एक तरफ राहु जी रहा था और एक तरफ केतु जी रहा था। केतु सबको हील कर रहा था, ये लो ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो। डॉक्टर्स बिकेम द गॉड्स, healers became the gods, tarot card readers became the gods, astrologer became the god। कि सारे टैरो और एस्ट्रोलॉजर चल रहे थे, मैं आपको उस टाइम पे बता रही हूँ, उन सबका प्रोफेशन चल रहा था ऑनलाइन, जिनका राहु अच्छा होगा। जो एस्ट्रोलॉजर का राहु केतु सही होगा, या वो इस तरह के दे रहा होगा, सही होने का मतलब कि वो इस चीजों को सपोर्ट कर रहा होगा, वो चल रहे थे उस टाइम पे, पैसा बना रहे थे, सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट इज राहु केतु। अब आप समझो इस युग में ऐसी चीजें आएंगी, और राहु देगा, पैंडेमिक्स देगा, 100% देगा, कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन देगा, उसके बाद कितने कितने छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन तो चलते ही रहते हैं। इसका इसका वैक्सीनेशन करा लो, उसका वैक्सीनेशन करा लो, ऑल इज राहु। ठीक है। सो where Saturn also played role and Ketu giving past life karmic debts। कितने लोगों की डेथ हो गई, याद केतु ने दी सबको, अब खत्म हो गया इसका, यहाँ पे खत्म करो इसको। कितनी जगह तो लोगों का कुछ नहीं हुआ, खैर वो लग चला जाएगा, बाद में हम करेंगे डिस्कस।
Rahu gives skin diseases, blood diseases and infections, food poisoning, wounds that don't heal. हीलिंग ना केतु दे देगा। केतु केतु काट भी देगा, खत्म भी कर देगा, हीलिंग भी दे देगा। राहु काट देगा लेकिन हीलिंग नहीं देगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ राहु। Addictive problems that lead to cancer like smoking, alcohol, tobacco, and if Ketu supports, such problem gets revealed in later stages when it's too late। मतलब कि राहु आपको ये सब चीजें दे देगा और अगर केतु यहाँ पे सपोर्ट कर गया तो केतु इस कैंसर को, इन जो आपको ऐसी डिजीजेस होती है आप पता ही नहीं लगने देगा। लास्ट स्टेजेस में जाके रिवील करेगा, पता चलेगा 4 महीने ही बचे हैं जीने के लिए। दैट टाइप ऑफ थिंग्स, कैंसर। Rahu gives problems related to respiratory and lungs, mental problems like depression, anxiety, hallucinations, schizophrenia। केतु भी देता है ये चीज mental patients, especially मून और अगर वो चीज हो जाती है तो डिप्रेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। Here केतु is also combined to give results। केतु कंबाइन होता है तो रिजल्ट देता है। मैं मानती हूँ जहाँ पे अगर केतु आ गया ना बहुत अच्छी बात है, वो आपको परेशानी तो दे देगा लेकिन रिलीज करवा देगा, वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई, हील कर देगा। राहु हील नहीं होने देता, बस ये प्रॉब्लम होती है। राहु एम्पलीफिकेशन का कारक है। एनी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, उसको छोटी सी छोटी चीज को हवा बनाना का काम क्या होता है। पैंडेमिक मैं आपको बता रही हूँ, कोरोना एक सिंपल वायरस इन्फेक्शन था, थोड़ा तेज था जो आपको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बट उसने क्या बता दिया, उसका हवा बना दिया बहुत बड़ा। और लोगों ने क्या किया, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अब ये बीमारी ऐसी थी जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिजीज थी, तो उसने उसको हवा बना दिया और लोग सिर्फ उस हवा की वजह से अपनी लाइफ लॉस कर गए। उस जो एग्जैजरेशन उसने किया ना, जिसका एम्पलीफिकेशन किया ना उसने, उस वजह से गया। वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन था, उसको अगर वैसा लिया जाता, लेकिन वो होना था क्योंकि उसको सैटर्न सपोर्ट कर रहा था उस समय, बहुत बड़ा कार्मिक टाइम था, बहुत बड़ा, तो वो रिलीज होना था, तो केतु ने उसको रिलीज किया जल्दी जल्दी। हमारा कंट्री क्या हुआ, अब आपको मैं वापस आ रही हूँ उस चीज पे। हमारा लैंड, हमारा कंट्री केतु ड्रिवन एनर्जी है। किसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई, इंडिया ने। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा दिए मोदी जी ने यहाँ पे। अभी मोदी जी का मैं बताऊंगी, वन ऑफ द ब्लेस्ड लीडर्स फॉर इंडिया, ब्लेस्ड प्राइम मिनिस्टर। सब चीजें इंडिया से सारा, जैसे कहते हैं कि फूड रिसोर्सेज कितने कंट्रीज को मिले, इंडिया बिकेम द लैंड ऑफ रिसोर्सेज एट दैट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि वो रिलीज करवा रहा था, इंडिया रिलीज करवा रहा था। सबने सोचा होगा कि इंडिया तो इतना बड़ा, जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा डेथ हमारे कंट्री में होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ हुई, यूएस में, राहु वाले देश में हुआ। हील नहीं हो पा रहे थे लोग, लोगों को वैक्सीनेशन काम नहीं कर रही थी। आप ये सोचो क्यों नहीं कर रही थी। दिस इज ऑल द प्ले ऑफ राहु एंड केतु। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन काम कर रही थी केतु, इट वॉज रिलीजिंग पीपल। सो मतलब इसको, ये तो कुदरत ने बस हमें तरीका दिया रीड करने का। सो आई दैट टाइम आई रिमेम्बर दिस, मुझे इतना ज्यादा, मैं उसमें ऑलरेडी पढ़ रही थी, आई वॉज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ लर्निंग ज्योतिषा, आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट एट दैट टाइम, आई वॉज इन माई स्टेज ऑफ लर्निंग, ये सब चीजें मैं पढ़ चुकी थी, बट आई वॉज नोइंग। एंड जब मैं इसको रियलाइज करा ना थोड़ा बाद, जब मैंने मोस्टली ना ये रियलाइज किया व्हेन पैंडेमिक वाज ऑन इट्स एंड, तब मेरी नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी थी, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड डैम, ये क्या नॉलेज है। वो गूज़बम्प्स क्रिएट हो गए थे कि ये क्या कर रहे हैं राहु केतु, सैटर्न, ठीक है। एंड दैट टाइम आई लिटरली बिकेम, मैं बहुत आर्डेंट डिवोटी हो गई शिवा की। उस टाइम से माय डिवोशन टू शिवा वाज एग्जैजरेटेड टू द नेक्स्ट लेवल, शक्ति की तरफ ज्यादा हो गया रुझान। एंड आई सॉ माय लाइफ चेंज आफ्टर दैट। मे बी वो अंडरस्टैंडिंग आनी ही ऐसी थी पैंडेमिक टाइम, ठीक है। सबके साथ हुआ होगा, कई लोगों के साथ हुआ है ये चीज, at different levels. So its work is to bring you foreign elements, food। राहु is fond of food and trying different foods। तो फूड में राहु का काम है, डिफरेंट फूड्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ, खाने का शौक। प्रोमिनेंट राहु पर्सन विल हैव टेंडेंसी टू ईट डिफरेंट फूड types of food and cuisines। It gives liking towards fast food, continental food। Since Rahu is unpredictable, it can give
even it can make people conscious about what they eat. So थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है ना राहु, तो कभी कभी लोग, ऐसे लोग थोड़े से मूडी नेचर के भी हो जाते हैं कि ये सिलेक्टिव खाना, ये इससे ये होता है, इससे ये खाएंगे, जो थोड़े से ऐसे भी हो जाते हैं ना कि डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, या वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अपने डाइट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इससे ये होता है, वो नॉलेज लेते रहते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, वो भी राहु ही देता है। ठीक है। Then coming to Ketu, that is south node, past life, dragon's tail, or you can say मोक्ष का कारक है। केतु इज अ मोक्ष कारक का, इसको आप ध्यान रखो हमेशा। स्टेट 0। सो एस्ट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सुटेबल डे इज ट्यूसडे माना गया है। अभी आगे ना इनके डेज ना बहुत डिफाइंड नहीं है, बट ये आप समझ लो ये सूटेबल डेज है बस, इसलिए मैंने इसको सूटेबल डे लिखा है, ट्यूसडे। कलर इज ग्रे एंड स्मोकी कलर्स। फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। देखो फायर एलिमेंट का है ना, अगेन यहाँ पे मैं एक चीज करती हूँ, बताती हूँ फायर क्या करती है, अग्नि क्या करती है, किस चीज को प्यूरिफाई कर देती है। आपको कोई चीज नेगेटिव मिलती है तो आप अग्नि में डालते हो, आप क्या करते हो, आप हवन में भी क्या करते हो, चीजें मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आप स्वाहा करते हो। ठीक है, आप उसकी नेगेटिविटी को डालते हो कि मैं इसकी ये नेगेटिविटी स्वाहा करती हूँ, और स्वाहा को पकड़ा देते हो फायर के थ्रू, उनकी बीवी को, उनकी वाइफ को। तो आप अगर देखो तो केतु भी क्या कर रहा है, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है ना, तो आपको रिलीज ही तो कर रहा है वो बेसिकली। तो मैंने आपको कहा कि राहु क्या है, वो इनटेक है, उसके बाद आपको रिलीज कौन कराता है, केतु ही कराता है। आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को कौन हटाता है, केतु ही हटाता है। तभी केतु को कारक बनाया गया स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, क्योंकि जब तक आप प्यूरिफाई नहीं हो रहे हो, आप पूरी तरीके से प्यूरिफाइड नहीं हो, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी पूजा करना नहीं है, मैं वो वाली स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग वन विद द इमोशंस, विद द इंटरनल यू फील वन विद द गॉड ऑन द स्टेट 0, दैट कम्स विद द फायर एलिमेंट। और एक पर्सन को जब जलाया जाता है, अभी टैरो में भी जब मैं आऊंगी, मैंने अच्छा वीडियो भी डाला हुआ है, आप एक बार देखना जाकर, मैं शेयर द वीडियोस लिंक ऑफ डेथ कार्ड, कि जब आपका क्रिमेशन होता है तो आपकी बॉडी को जलाया ही जाता है, दैट इज केतुस प्रोसेस ओनली, कि उसको अग्नि को सौंप दिया जाता है, कि ताकि उसके सारे जो अच्छे बुरे कर्मा है वो उसी में चले जाएं, और उसकी जो नेक्स्ट बर्थ है ना उसमें उसको मिल जाए, उसके पॉजिटिव कर्मास भी मिल जाए सोल को, उसके नेगेटिव कर्मास भी बर्न हो जाए। यहाँ पे ये मीनिंग होता है जब हम एक बॉडी को जलाते हैं। दिस इज द मीनिंग, दैट इज द केतु प्रोसेस, कि जब आपका सोल उसमें से निकलता है तो आपके अच्छे कर्मास चले जाए स्वाहा की एनर्जी से, और बर्न हो जाए यहाँ पे आपके बुरे कर्मास। और इसीलिए आजकल वो जो चलता है ना इलेक्ट्रिक क्रेमेशन का तरीका, भैया राहु की एनर्जी कंप्लीटली, राहु कभी नहीं करेगा, वो सोल को कभी शांति नहीं मिलती है, मतलब वहां पे फिर लगता है पितृदोष। आप उसके बाद ना देखना सबके चार्ट पे पितृदोष आ जाएगा, जहाँ पे ये आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी है ना, राहु तो टेक्नोलॉजी इसमें भी डाल दी उसने, इलेक्ट्रिक क्रेमेशन करा दो, कितना हुआ कोरोना में, कार्मिक डेथ था। अब ये जो सोल्स अगली उसमें आएंगी, दे विल हैव सम काइंड ऑफ पितृ दोष और सम काइंड ऑफ दोष कमिंग फ्रॉम राहु केतु, बट ये भी उनका कर्मा ही होगा, शायद ऐसा होना है कि दे हैव मल्टीपल साइकिल बर्थ्स टू टेक, दैट्स व्हाई हो जाता है ऐसा, यही एक प्रोसेस बन जाता है। बट इसलिए कहा जाता है कि जो क्रियाकर्म करें, जो भी आप चीजें करें, उसको प्रॉपर रिचुअल्स और अच्छे से करें, नहीं तो वहीं से दोष उत्पन्न होता है, वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है। देन Ketu denotes higher learning, achieving enlightenment, detachment, research, internal silence, detachment energy, ये सब केतु की एनर्जी है। ठीक है। सिंस अब रिसर्च देखो राहु में भी आया था, बट ट्रिगरिंग कौन दिया होगा, केतु, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, उस पॉइंट को हमेशा याद रखना, तब आपको ये सारे कनेक्शन समझ आएंगे। सिंस इट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, it is the knot that your soul keeps in subconscious level with its journey। आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन केतु जोड़ करके रखता है आपके चार्ट में, आपकी लाइफ में जहां पे वो प्लेस्ड होता है, वो आपके नॉट होती है जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे कई बार रहती है। तभी हम कहते हैं ना, कई टैरो कार्ड रीडर्स के पास लोग जाते हैं, मेरे को ऐसा सपना आया, आपका सपना भी जो है वो सबकॉन्शियस लेवल ही तो है, क्या इसका कोई मीनिंग है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसा सपना आया, ये मुझे कुछ बताना चाहता है सपना, ऐसे पर्सन्स को फीलिंग होती है, लोगों को जो ऑन अ लेमैन टर्म होती है, तो बिल्कुल होती है। फिर आप उसको टैरो कार्ड की एनर्जी से लोग रीड करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हो।
एक एस्ट्रोलॉजर आपको तुरंत देख के बता देगा बहुत सारी चीजें, टैरो कार्ड रीडर आपको डिवाइन के यूनिवर्स के मैसेजेस रीड करके बता देगा कि आपको इस सपने के थ्रू यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है, आपके पास्ट लाइफ से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एक ही बात है। Then, since it's past life connection हो गया, Ketu brings separation and pain by releasing karmic knots for the soul. हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। केतु एस्ट्रोलॉजिकली सिट्स एट गंडांता पॉइंट। अभी ये गंडांता पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा, आप अभी इसको एक लेमैन सेंटेंस में ऐसे समझ सकते हो, विच मीन्स वेयर द एंड एंड बिगनिंग मीट्स। आप गंडांता पॉइंट को क्रिमेशन ग्राउंड्स भी समझ सकते हो in the physical level. It is not exactly that, but for our visibility, for on the human level, जो cremation grounds हैं, वो गंडांता पॉइंट्स हैं जहां पे क्या होता है, एक सोल लीव कर रही है बॉडी विद द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फायर, एंड वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आत्माराम लोगों ने सुना होगा, वो बहुत स्पिरिचुअल लेक्चर हो जाएगा कभी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट इन द स्पिरिचुअल क्लासेस कि आत्माराम क्या है। तो ये प्रोसेस जो है वो इसलिए गंडांता, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हम क्रिमेशन ग्राउंड्स को थोड़ा सा गंडांता पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं, और द प्लेसेस ऑफ हॉस्पिटल जहाँ पे चाइल्ड बर्थ होता है, टू प्लेसेस। ठीक है, आपका क्रिमेशन ग्राउंड और आपका जो चाइल्ड बर्थ की जो जगह होती है, ये आपकी गंडांता पॉइंट से नियर कह लो होती है या फिर उसके जैसी होती है। बाकी इट्स इन द इट्स इन द सबकॉन्शियस realm, in the different realm, the Gandanta point, the where the life is, the soul is leaving the body and giving, coming towards the take the birth। वो जो बीच का जो नॉट क्रिएट होता है ना, आपको इससे इससे जोड़ा जाता है, जो एक नॉट बनता है, वो गंडांता पॉइंट होता है, वो केतु के अंडर है। और एक और होता है, वो मरकरी के अंडर भी होता है। जब आप नक्षत्र पढ़ेंगे तो if you pursue astrology for that matter, not in here, then you will come to know नक्षत्रास में ये चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट केतु के प्लानिटरी लेवल पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इससे कई रेमेडीज भी, सीवियर रेमेडीज ना कराई जाती है। क्रिमेशन ग्राउंड्स, थोड़ी सी तांत्रिक रेमेडीज होती है वहां की, क्रिमेशन ग्राउंड्स की और बर्थ प्लेसेस की। Okay, so now we have a meeting. Ketu is high level of meditative state and gives intense psychic level, which is more on subconscious level. But initially, person does not feel it in conscious state until awakened through Kundalini Shakti. अभी मैं आपको कुंडलिनी बताई रही थी ना, नीचे केतु की एनर्जी होती है जो कि आपको अंदर से, जो केतु है वो हाई लेवल ऑफ मेडिटेटिव स्टेट है। आप समझ लो लॉर्ड बुद्धा का स्टेट है वो, शिवा का स्टेट है वो। ठीक है, सो एंड गिव्स इंटेंस साइकिक लेवल। तो साइकिक लेवल जो मोर ऑन सबकॉन्शियस इंटरनल होता है ना, इसलिए जो मून केतु वाले पर्सन होते हैं ना, उनका कॉन्शियस, उनका जो साइकिक लेवल होता है ना, वो अंदर होता है, उनको पहचानना पड़ता है उस चीज को, तो वो फील नहीं कर पाते, इसलिए उनको सपनों के थ्रू आ सकती हैं चीजें, या उनको ऐसे अंदर से बस एक स्ट्रेस सा भी होता है उनको, जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, कुछ है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। फिर वो जब अवेकेंड हो जाते हैं कुंडलिनी शक्ति से, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, 10 महाविद्या से जागृत होती है, जो मैंने आपको करवाई, तो आपका इंट्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ टैरो कार्ड रीडर्स विदाउट दीज सारे टैरो मीनिंग्स, वो सब जो पढ़ रहे हैं शॉर्टकट में, आप पढ़ लो, 3 दिन में टैरो सीखो, 99 रुपए। मैं पैसों का तो छोड़ ही दो, बट व्हाट दे आर डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज जस्ट राहु, और वो ऐप पे लगना है, बस कुछ बोलना है, पैसे आ जाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू क्या है वो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वो ग्रीड है। राहु और करो और करो और करो, और एक पॉइंट पे आके आके गिर जाएगा। आई हैव सीन एप्स going up and falling down, बनी, astrologers आए, गिर गए, and I know I'll not name those apps, but I know I have people associated from those apps and their main HRs and all। तो वो इसीलिए जब तक आप प्रॉपर नहीं करोगे ना, ये नॉलेज तो प्रिवेल करने ही वाली, ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये केतु से आ रही है, तो चलती रहेगी वो। बट उसको जिसने राहु की तरह से करा ना, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो सिर्फ कुछ शॉर्ट लिव्ड होगा, बस इतना है। ठीक है, सो केतु रिप्रेजेंट्स डॉग्स, दैट्स व्हाई केतु इज आल्सो लॉयल एंड इनोसेंट। केतु डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। अ सोल इज बॉर्न टू कंप्लीट द केतु,
That's why man's best friend is dog. One of the most very relatable example around you. कौन है? कहा भी जाता है ना कि आपके दुख में अगर आपका एक साथी डॉग मिल जाए, आपका हाथ डॉग थाम ले, तो समझ लो आप लकी हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो. इट इज ट्रू. वो कोई और नहीं है, वो केतु है. वो आपको रिलीज कराने के लिए आ रहा होता है. एक डॉग हमेशा लाइफ में रिलीज कराने के लिए ही आ रहा होता है ह्यूमन के. दैट्स व्हाई द डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज लॉयल. उसका ये पार्ट नहीं है. या प्रज्योति, यू वांट टू से समथिंग? प्लीज गो अहेड. Huh. So the thing is, I'm a bit confused right now. Not exactly confused, but I'm having a query. If या Ketu represents dogs, तो फिर काल भैरव जो हैं या फिर भैरव वो जो है. भी हैं, हाँ. उन जो वाहन है वो यूजुअली कुत्ता ही होता है. How is it related? I'll tell you. See, काल भैरव is actually जो शिवा है ना, वो कोई और नहीं, वो भैरव रूप ही है. Correct. So, जी. right? So काल is what? काल is again Saturn. Okay. हाँ. Okay. Okay. And केतु is dog. थर्ड पॉइंट कौन सा रह गया? राहु, जो आप तक रीच कर रहा है. तो इसलिए आपके पास वो रीच कैसे करते हैं? केतु पे चल के, डॉग्स की वाहन पे चल के. Okay. Okay. It's a little deep, but yes. जी. Kal हाँ. Bhairav is complete energy of Saturn, Rahu, Ketu. Okay. Dog is Ketu. Rahu is through which it is reaching to you. Saturn because it's time, Kal. Hmm. Okay. So जी. that is Thank you. okay. So coming back to Ketu. Okay, innocent soul. So हाँ, डॉग के ऊपर बात चल रही थी. सो डॉग आपका हाथ, आप जब भी आपने देखा हो, मैंने तो देखा है, मींस आई हैव सीन इन माय लाइफ. अभी मैं अपने ऊपर वाले पड़ोसी का एग्जांपल दे सकती हूँ कि दैट ही ब्रॉट डॉग एंड आई हैव सीन हिम बीइंग वेरी, वो गाली गलौज करना, एग्रेसिव पर्सन है वो बहुत ज्यादा. एंड ही ब्रॉट डॉग जस्ट 1 year बैक. भाई उसकी काया पलट हो गई. एंड I have seen people who gets dog. या तो 2-3 चीजें होती है उनके साथ लाइफ में, कुछ तो चेंजेस होते हैं. या तो उनका कोई पास्ट लाइफ का वुंड हील हो जाता है, या उनका इसी बर्थ में जो उन्होंने सहा होता है वो हील हो जाता है, या उनपे कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो नहीं, वो टल जाती है, या वो किसी तरह से निकल जाती है. क्यों? क्योंकि आपका केतु रिलीजिंग पॉइंट एक्टिव हो जाता है. तो इसलिए डॉग्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस रहते हैं क्योंकि डॉग का जो राहु है ना, वो उनको ड्राइव करता है. बेसिकली राहु तो ड्राइविंग एनर्जी, तो थोड़ा सा वो, जैसे कहते हैं ना, तभी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको. डॉग्स भी बहुत ध्यान से रखने चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे लोगों को डॉग्स नहीं रखने चाहिए. तो आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो कि डॉग रखना है नहीं रखना है. बाकी मैं ये मानती हूँ, देखो पता, अगर आपको अंदर से कॉलिंग आती है ना डॉग रखने की, आपको रखना चाहिए. यही इसका केतु का काम क्या है? वो इंटरनली तो है, वो आपकी इंटरनल साइकिक एबिलिटीज है और इंटरनल साइकिक लेवल है. अगर आपको अंतर मन से ये चीज फील हो रही है कि आई नीड अ डॉग, don't ask anyone. That means you need a dog. That means your Ketu is calling your another Ketu outside. Your internal Ketu is asking to bring an external Ketu into your life. Simple, get it. यही तरीका. लेकिन अगर आप दूसरे को देख के डॉग रख रहे, नाउ आई विल कम टू हियर. आजकल का प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि अच्छा, ये इंटरनेट पे वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे हैं ना डॉग से रिलेटेड. तो लोग देख कर अरे प्यारा लग रहा है, वो राहु एनर्जी है. मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको चीज प्यारी लग रही है ना देख करके, वो राहु एनर्जी है. कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, उसकी एक्टिविटीज को देख करके, दैट इज राहु हु इज फैसिनेटिंग यू. अगर आप उसको देख करके डॉग ला रहे हो, नो, इट कैन हार्म यू. इट कैन इवन गिव यू अ डॉग बाइट. तो आप समझ रहे हो द लेवल, कैसे समझना है. आप अपनी लाइफ में भी इसको कैसे समझ सकते हो. अगर आपको नहीं जाने की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी में, आप इसी से समझ जाओगे कि कैसे में आपको डॉग लेकर आना. आप दूसरे को देख करके डॉग लेकर मत आओ. अगर आप फील करते हो डॉग के साथ, आपको कनेक्शन फील होता है, तभी मैं कहती हूँ ना, स्ट्रीट डॉग्स आर गुड. क्योंकि वो असली केतु है. कैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, हमें एक पपी मिल जाता है, हमें छोटा सा या जो भी डॉग मिल जाता है, हमारा कनेक्शन बन जाता है उससे. हम लगता है यार इसको छोड़ के कैसे जाएंगे, ये बेचारा लावारिस है, हो जाएगा, मर जाएगा, आप लेकर आ जाते हो. दैट इज द रियल केतु. एंड आई टेल यू दैट डॉग विल चेंज योर लाइफ.
दैट डॉग विल 100% चेंज योर लाइफ। आपके पेन्स को रिलीज कर देगा, आपके ऊपर आने वाली कई चीजों को रोक देगा, काल आपका साथ दे देगा। दैट इज द रियल काल भैरव कमिंग टू यू, आई टेल यू। ओके, तो दैट इज द डेप्थ। मैं इसलिए कई लोग उसको कहते हैं कि आप ब्रीड्स पे मत जाओ। वो ब्रीड जो आजकल देख कर लेते हैं ना, ये अच्छा ब्रीड है, ये राहु की एनर्जी है, डोंट गो ऑन टू दैट। adopt a real dog, a real केतु, ठीक है। So then केतु, a soul is born to complete केतु, that's why man's best friend is dog. केतु represents flag, ध्वजा, which means victory of or something that is achieved. So केतु सबसे बड़ा फ्लैग का जो कारक है ना, फ्लैग इज केतु। हमेशा जाने कोई भी टाइप का फ्लैग केतु है। राम प्राण प्रतिष्ठा में क्या हुआ, झंडा फहर गया सनातन धर्म का, केतु, राम ब्रॉट इट। एंड अभी आज टाइम आई डोंट नो बचेगा नहीं, मैं इसमें, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से इन दिस। सो again ketu is chanda, something which you have already achieved in the past birth and you re-achieve it in this present birth. So it shows that what you have achieved in past births and the cycle is continued from completing that past pending work. ठीक है, वही चीज मैंने बोली कि वही साइकिल वहां से शुरू होती है। सो वेर एवर केतु इज प्रेजेंट, इट शोज दैट देयर विल बी मल्टीपल बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। हमेशा जान लीजिए केतु आपको मल्टीपल बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स देगा जहां पे वो बैठा होगा, विच विल एंड ऑन विक्ट्री एंड अचीविंग दैट इन द प्रेजेंट पर्थ। तब आपको वो फाइनली जाकर किसी पॉइंट पे अचीव करवाएगा और उस पर विक्ट्री देगा। वो जिस भी स्थान पे जैसे भी बैठा होगा उसका यही काम है करना। Ketu shows your mastered skills which you have also achieved in past births and has brought in the current birth. ठीक है, जो उसको आपने, केतु जहां भी आपका होगा, आपके वो जो भाव होगा, जब हम आएंगे हाउसेस पे तो आपको भी पता चलेगा आप इस चीज को पहले अचीव कर चुके हो, मतलब आप इसको काफी हद तक करते हुए चले आ रहे थे, आपको पता थी, और फिर वहीं से वो चीज छूटी थी, इसलिए आप वहीं से उस चीजों को उठाओगे, तो इसलिए वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीपल बिगनिंग्स एंडिंग्स पेन्स होंगे, और उसके बाद आपको उसमें अल्टीमेट अचीवमेंट मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल निकिता का ही दे देती हूँ क्योंकि मुझे याद है। निकिता का आपका 7th हाउस में है केतु। यस मैम। क्या हो, मैंने, आपने मुझसे पूछा था कि मैरिज रहेगी, मैंने कहा था मैरिज तो कहीं नहीं जाने वाली है। अब आप देख लो सफरिंग्स करनी है आप। क्यों कहा था इसको देख कर कहा, क्योंकि मुझे पता है आपका पास्ट बर्थ में आप मैरिज ऑलरेडी काफी टाइम तक अचीव कर चुके थे, वहीं पे आपका कुछ था एंड देन यू वर कंटिन्यू, तो इसमें आपको कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी, पेन्स आएंगे, और फिर चीजें आपकी, मैंने आपका था डाउन द 10 ईयर्स 12 ईयर्स आपकी मैरिज सेटल हो जाएगी, अच्छी चलेगी। देगा केतु इस चीज को 100% देगा। एक पॉइंट ऐसा है आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा बचोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। चंद्र तो सबके ऊपर चलती है बट ये चीज होती है, ठीक है। देन यहाँ पे केतु शोज, कहाँ पे गए हम लोग, विक्ट्री एंड अचीविंग दैट इन द प्रेजेंट। केतु शोज योर मास्टर्ड स्किल्स which have also achieved in past birth and has brought in the current birth. Ketu invokes spirituality which is more towards self journey and becoming one with शून्य. It is not that religious activities, आपको अगेन मैं बताऊंगी, पूजा अर्चना दिया बत्ती करना केतु नहीं है। ऑफकोर्स जो आपका दिया होता है ना, जो कैंडल होती है, कैंडल की लॉ इज केतु, बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शून्य में जाना, स्पिरिचुअलिटी क्या है, दैट वननेस विद द गॉड इज केतु, ठीक है। केतु इज अ साइंटिफिक प्लैनेट, सो इट गिव्स इंडिविजुअल टेंडेंसी टू क्वेश्चनिंग थिंग्स। तो आपको जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, दैट व्हाई, क्यों जो आता है, वो अंदर से केतु भी देता है आपको। वो पकड़ाता आपके राहु को है, फिर राहु उसको और एम्पलीफाई करके दे देता है, तो वो और ज्यादा वाइज होता है हर चीज में। जो लोग पूछते क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा, क्यों वाई, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों, वो केतु इन्वोक करता है बट उसको एग्जैजरेट राहु करके देता है फिर आगे। एंड गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। अगेन अभी भी जो हम डेप्थ रीडिंग करते हैं, जो हम रीडर्स होते हैं, वो इन डेप्थ जाकर ही तो रीड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, टैरो भी पढ़ते हैं, वो केतु की एनर्जी है। But this driving force comes from Rahu, which sits exactly 180 degree of Ketu. ठीक है, so driver is Rahu, natural work is Ketu, who makes one enlightened. And enlightenment leads to liberation. And materialistically also, one gains respectable position in society. केतु आपको रिस्पेक्ट दिलाता है,
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोदी जी हैं. Such people on material and social grounds bring change and bring revolution like Modi ji. And in spiritual life also makes visionaries spiritual leaders. मतलब जो विशनरीज होते हैं ना, लाइक कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स जो चेंज लेकर आ जाते हैं, चीजों को, लोगों को अलग ही अध्यात्म पढ़ा देते हैं बहुत सारे हैं, लाइक जया कशोरी हैं. देयर इज लॉट ऑफ लीडर्स, नाम याद नहीं आ रहे मुझे, वो भी हैं. सदगुरु जी हैं. अगेन वी हैव द वेरी फेमस ट्रेंडिंग बागेश्वर धाम के श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण. तो लॉट ऑफ लीडर्स who bring change, that is more of Ketu energy. Okay. Negatively, Ketu is the separation, cuts, karmic knot, endings and beginnings. ठीक है. So Ketu do bring transformations. जो cuts लगते हैं, separations होते हैं, आपको relationship टूटते हैं, वो सब चीजें जो होती हैं लाइफ में, वो सब केतु देता है. So Ketu do bring transformations in life that has part and parcel of sufferings and pains, but its ultimate aim is to release your pattern and let your soul elevate. Ketu brings isolation where it sits, it is placed, it can give political problems to the people. जहां पे बैठा होगा वहां पे पॉलिटिक्स होगी. मैरिज में कितनी पॉलिटिक्स हुई, कितना हुई ना. ये बहुत पॉलिटिक्स अभी भी चालू ही है पॉलिटिक्स तो, लेकिन पहले से कम है, लेकिन फिर भी. क्योंकि आपने अपना केतु का दूसरा साइड एक्टिव करना शुरू कर रहे हो ना. खत्म हो गई हाँ. देखा. आप उसका सिग्निफिकेंस बढ़ा दोगे ना इस साइड वाले का, हाँ. स्पिरिचुअलिटी, टैरो का. मैंने आपसे उसका कहा कि घुस जाओ, अगर आप कॉलिंग आ रही है घुसो, इसका मतलब भगवान ने आपको ब्लेस किया है, आपको कोई बूंद हम्म. दी यहाँ पे कि आपको इस सिग्निफिकेंस को बढ़ा देंगे ताकि वो आपकी मैरिज में थोड़ा सा सेटलमेंट लेकर आ पाए. और नहीं, काफी ये इधर टैरोट का ये सीखने के बाद काफी काफी अच्छा है. बिल्कुल पहले होगा. से काफी अच्छा है. बिल्कुल आपको जाना चाहिए. तभी मैं आपको पुश कर रही हूँ हमेशा कि आप करो, आपको जैसे भी आप करो. हमने जब किया था हम्म. तब करो, कि यू विल गेन. आपकी मैरिज लाइफ मुझे पता है इस चीज से अच्छी होगी. ठीक है. हम्म. सो but its ultimate aim is to release and set your pattern free and soul का elevation करवाना. Ketu brings isolation where it's placed. It can give political problems. People might cut you off in those areas. लोग आकर आपको उसी जगह पे काट देंगे, आपको हटा देंगे, ऐसे कहेंगे जैसे आपका कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पे. आपको बहुत पेन मिलेगा उस चीज से. ठीक है. द इंजरीज वेयर सीवियर कट्स. अब इसको हम फिजिकल लेवल पे कैसे ले सकते हैं कि जो आपको सीवियर कट्स लगते हैं, एम्प्यूटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये अंडर केतु ही आते हैं. सो केतु रूल्स सर्जरीज एज वेल. ठीक है. करियर वाइज केतु गिव्स फॉरेन रिलेटेड प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्टिस्ट, साइकिक रीडर्स, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लाइक डिटेक्टिव्स का जो काम होता है वो केतु का होता है. डॉक्टर्स, सर्जन्स, meteorologists, space scientists, software engineers, researchers of all kind जैसे भी हैं, spiritual leaders, revolutionary politicians, mentors, those mentors who guide you towards moksha, and Shiva speaks the teachings of Shiva. जो शिवा के बारे, लाइक मैंने आपको सदगुरु जी का एग्जाम्पल दे ही दिया आपको, जो शिवा के बारे में ज्यादा आपको सिखाते हैं वो होते हैं sages, saints, डॉक्टर्स हु हील हर्बल एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स. अगेन आगे मैंने आपको बोला था केतु इज आयुर्वेदिक एंड हर्बल ट्रीटमेंट, जो इन सब चीजों में अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी. तो डॉक्टर्स जो कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स हर्बल ट्रीटमेंट्स देते हैं, वो वाले डॉक्टर्स, वो वाले हीलर्स. केतु गिव्स ग्रेट हाइट्स ऑफ सक्सेस हु लीव देयर नेम बिहाइंड. जिनका नाम सोसाइटी में याद किया जाता है लाइफ में, युगो युगो तक, युगो नहीं आई मीन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उनका नाम याद किया जाता है. हाँ, युगो वाला भी ऑफ कोर्स, हम इतने ऋषि मुनीस के बारे में पढ़ रहे हैं, युगो की जो हमें जानकारी है वो केतु की वजह से ही मिल रही है. ठीक है. विच कम्स विद सम ट्रैजिक सफरिंग्स और पर्सन गोज विद मल्टीपल फेलियर्स इन लाइफ. ये कैसी सक्सेस देता है आपको पता है? वही सक्सेस देता है जिसमें आपको कोई ना कोई सफरिंग अटैच होती है. तभी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, आपने पूछा था कि आप ऐसा क्यों कहते कि जो हीलर्स बन रहे हैं या जो टैरो कार्ड रीडर्स है उनकी लाइफ में हमेशा कोई ट्रेजेडी हुई होती है. जो रियल टैरो कार्ड रीडर होगा, कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, जो लाइफ में बहुत फेमस हो जाते हैं, जिनको ग्रेट हाइट्स मिलती हैं, उनका कोई ना कोई बैक एंड पे ना कोई बहुत सीवियर चीज हुई होती है. बिकॉज केतु एक्टिव है ना वहां पे, तो उसने कहीं ना किसी लाइफ के पोर्शन में उनको ये चीज दी होगी, तब जाकर के वो होती है, तब वो एक्टिव होती है. ठीक है. देन
Always Ketu type of success is related to past tragedies and transformations and failures. Ketu is capable of Ketu is cable wires, क्योंकि ना केतु का पीछे का जो टेल वैसा एरिया होता है ना आपका, ड्रैगन टेल जिसको बोलते हैं, वो वायर्स के जैसे ही तो होता है ना, तो वायर्स भी केतु है. सो पर्सन विल डू प्रोफेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, इससे निकलता है. कैन बी द इंजीनियर और टेक्नीशियन. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स, क्योंकि ये सब चीजें आपकी स्टे करती हैं. क्यों इसमें केतु है? क्योंकि आपका घर बनता है, टाइल्स बनती है, तो वो सालों साल आपका वैसे ही रहता है, तो इसलिए उसमें केतु की एनर्जी होती है. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स, तो ये सारी चीजें होती है, उसमें भी केतु होता है. So Ketu also represents lawyers because they release you from something like punishment, legal issues, jail. तो lawyers भी वो देखे जाते हैं जिनका केतु प्रोमिनेंट होता है, वो lawyers भी बनते हैं. पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स एक्टिव होता है केतु का, तो आपको रिलीज कराते हैं. ठीक है, which is coming as a karmic result. Fishermen, tailors, knitters, spinners, spinning mills are also under Ketu professions. क्योंकि छोटी छोटी सुई से निकालना फिशरमैन का भी काम होता है, चीजों को निकालना. ठीक है, वो सब चीजें. हेल्थ, केतु गिव्स प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड बर्थ एंड हेंस हैव मेजर रोल इन पितृदोष. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. केतु गिव्स स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया. केतु और मून का कॉम्बिनेशन पितृदोष दिखाता है, बट ये ऐसा पितृदोष होता है जिसको मेंड किया जा सकता है, जो कि ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा सिवियरिटी ऐसी वाली नहीं होती, बट प्रॉब्लम्स होती है. केतु, मून और राहु का जो दोष लगता है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. केतु गिव्स हिडन हेल्थ इश्यूज, डिजीज which can be fatal like cancers, diseases which remain hidden and revealed in last stages. वो हमने पढ़ा था ऊपर, like cancer, तो वो जो चीज लास्ट स्टेजेस पे आपके रिवील हो, आपको पता ही ना चले आपके अंदर थी. मुझे तो कभी पेन ही नहीं हुआ, मुझे एकदम से सडनली आई और अब पता चला कि वो इतनी डेंजरस और इतनी सीवियर हो चुकी है. वो केतु का काम है. वीकनेस इन द नर्व्स, फॉलिंग हेयर्स, बाल्डनेस, केतु प्रॉब्लम्स, ulcers, cysts, digestive problems, mysterious diseases which becomes difficult to diagnose, ये सब केतु है. पेन्स आर रिलेटेड टू डिजीजेस, कभी डायग्नोज नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चल रहा क्या होती है. उसमें राहु केतु दोनों का होता है वैसे, तो दोनों ही होते हैं, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर रहा होता है, केतु आपको जानने नहीं दे रहा होता. ठीक है, सो पेन्स आर रिलेटेड टू केतु. सो एनी काइंड ऑफ पेन्स हैपनिंग इन बॉडी विल हैव केतुस रोल. जैसे आपको बॉडी में मोस्टली किसी से सर दर्द बहुत ज्यादा रह रहा है, कोई भी दर्द भी, अगर एक मामूली सा भी दर्द रह रहा है ना आपको, वो केतु का कहीं ना कहीं उस पर रोल जरूर होगा. ठीक है, डॉग बाइट्स हैपन विद बैड केतु. ठीक है, फिजिकल इंजरीज हैपेंस ड्यू टू केतु. केतु गिव स्लीप डिसऑर्डर्स, हियरिंग इनएबिलिटीज, क्योंकि केतु का सर नहीं है ना, ऊपर वाला पार्ट नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए, तो हियरिंग एबिलिटीज, ईयर प्रॉब्लम्स देता है कई जगहों पे, वो आपको देखना होता है, लेकिन केतु की वजह से आता है. लिसनिंग प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंटल ट्रेजेडीज, एबॉर्शंस, इनक्योरेबल डिजीजेस. केतुस इफेक्ट गिव स्लेंडर बॉडी एंड फिजिक. जिनके ऊपर केतु का ज्यादा प्रभाव होता है उनकी बॉडी पे फैट गेन नहीं होता, स्लेंडर बॉडी ज्यादा रहती है, पतले रहता है. ठीक है, all right, so here we have done Ketu, and what is the time? Let me check. It's 5:41. Okay, हम 20 minutes class करते हैं, and let's begin with the next topic so that now we can complete. अच्छा, till now if anybody wants to share or ask any doubt, please go ahead. So starting with this topic, I'll take a sneak preview into the elements first, क्योंकि थोड़ा सा elements के बारे में अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है तो मैं उस चीज को पहले क्लियर करना चाहती हूँ विद जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इट. कि फायर, अग्नि क्या है? फायर इज हॉट, वाइल्ड, पैशनेट, अनप्रेडिक्टेबल, एनर्जेटिक एंड होल्ड्स पावर ऑफ क्रिएशन. सो पावर ऑफ क्रिएशन किसके पास है? फायर के पास है. ठीक है, इट कैन बी एज कंस्ट्रक्टिव एज मच इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव. जितना कंस्ट्रक्टिव है फायर, ऑफ कोर्स उतना डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. फायर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल स्पिरिचुअल रिचुअल्स एंड आवर किचन टू कुक फूड. Therefore, Agni, fire is the purest form of energy. That's why it is said, proverb, when one burns themselves in life, they get more purified and lightning. तो आप जब अपने आप को कहते हैं ना, बहुत जितना आप जलाते हो, तपाते हो, आप उतना निखरते हो, सोने के जैसे. ठीक है, fire is a masculine element. Always remember that. Symbolic of energy, enthusiasm, sexuality, willpower, reflects the drive to achieve. ये fire की qualities हैं.
फायर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सोलर प्लेक्सस चक्रा, दैट इज जो मैंने आपको पढ़ाई था वो सारा, तो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, वही सेम चीज है। एंड हैव 4% ऑफ प्रोपोर्शन इन द बॉडी, ठीक है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ इज अर्थी, स्टेबल एंड टैंजिबल. It serves as the foundation from which everything can grow and develop. Okay, so जो चीज अर्थ से आपको मिल रही है, जो चीज ओवर टाइम पीरियड आपके एज अ फ्रूट निकल के आती है, वो आपको अर्थ एलिमेंट से मिलती है, इसलिए वो टैंजिबल है, आप छू सकते हो, स्टेबल है आपके सामने. इट प्रोवाइड्स सच इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर लाइफ, ठीक है. अर्थ एलिमेंट इज ऑल नेचर इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड इट इज फर्टाइल, ठीक है. अर्थ or artha is living world rules over materialistic needs and requirements. जो आपकी needs है, अर्था, देखो फायर इज धर्म, अभी हम इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष को मैं आगे समझाऊंगी जब हम हाउसेस को पढ़ लेंगे. बट अर्थ इज रिलेटेड टू द materialistic side, the requirements, the money requirements, ठीक है. So over material requirements, in ancient time it was material possessions that were exchanged to do a living, barter system. And gold metal coins with the Hindu mythology was called Swarna Mudra. देते थे ना पहले किंगडम्स में, स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी. नाउ इट इज कॉल्ड मनी. आपके जो टैरो होता है ना, उसमें जो ऐसा कॉइन सा बना होता है जिसमें स्टार सा बना होता है, वो स्वर्ण मुद्रा जैसे ही दिखता है. देखो, अर्थ एलिमेंट इज मनी एंड ऑल नीड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ लग्जूरियस लाइफ. अर्थ इज अ फेमिनाइन एलिमेंट, इसलिए क्या कहते हैं हम, कहीं ना कहीं जो हमें देती है वो माँ देती है, तो माँ के अंदर बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट होता है. फायर किसके अंदर है, शिवा की थर्ड आई के अंदर है, शिवा के अंदर फायर है, ठीक है. बट माँ पार्वती हमें देती हैं, शी गिव्स दैट, ठीक है. देन कमिंग, as we discussed, earth element is found base of development. It corresponds to root chakra, that is the first chakra, your root chakra, and have 12% portion in the body. Vayu, air tattva, that is air, Vayu. Air is tangible, intangible and unseen. देखा नहीं जा सकता, but it is constantly in movement. हर समय आपके अराउंड है. Air can be slow or fast and mostly remain around us in an unnoticeable form. So that's why air represents oxygen, because oxygen air में ही है, because air holds all gases and one of which most important is life-giving oxygen. और air का कौन सा planet है, सैटर्न एंड राहु. तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं रह सकते. We breathe oxygen each milliseconds and don't realize that if we don't have it, we won't survive for a second. Air is powerful because it becomes wind and storms and create destructions in life. तो air का जब destruction करती है तो वो किस फॉर्म में करती है, वो बिल्कुल मतलब वो होता है ना आपका साइक्लोन लेकर आ जाती है, वो एयर का ही क्रिएशन होता है, एयर एलिमेंट का. तो आप सब कुछ डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है. सो एयर समथिंग व्हिच इज आल्सो अ बिट अनप्रेडिक्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट्स व्हाई राहु इज अनप्रेडिक्टेबल, सैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल, व्हाट दैट ही इज नोटिंग एंड गिविंग यू. एंड अभी आप पूछ रहे थे ना, आप देखो तत्वों से भी प्लैनेट को समझ सकते हो. अभी आपने बताया कुशाग्र दैट योर सैटर्न एंड योर केतु इज टुगेदर, सो दैट मींस योर एयर एंड योर फायर इज टुगेदर इन व्हिच राशि, इट इज इन द वाटर साइन. सो अभी आप देखो कि आपके फायर को जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन. किससे मिल रही है, एयर, सैटर्न से. वो उसको और भड़का रहा है, मतलब समझ लो आग को एयर एलिमेंट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और आपका ये चीज वाटर में है. सो आपका फायर वाटर में चला गया तो स्टीम क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम देगा. अब सैटर्न लेकिन वाटर के साथ सही है, इट्स कंपैटिबल, तो आपको सैटर्न थोड़ा सा गिफ्ट्स भी देगा. तभी मैंने कहा ये आपको सैटर्न एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको कुछ गिफ्ट्स भी देता है, कुछ सफरिंग्स भी लेकर आता है, और जिससे कनेक्टेड होता है, जिस भाव से, जिस राशि से, अब वैसा आपको देता है. तो 7th भाव से कनेक्टेड, आपकी मैरिज आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, लाइफ पार्टनर से, तो श्योरली आपको इस चीज में देगा, ठीक है. We breathe oxygen each milliseconds and don't realize that if we don't have it, we हो गया ये unpredictable, but at the same time it is something we need, भी हो गया. Air can enter anything within a slightest space. छोटी सी छोटी जगह से भी air enter हो सकती है. Symbolically, air elements relate to knowledge. इसलिए नॉलेज क्या है, आपको अगर नॉलेज को लेना चाहते हो तो नॉलेज कहीं से भी आ सकती है ना. कांस्टेंट चेंज, एक्शन,
पावर, हिडन ईगो, ईगो आपके अंदर कब जन्म ले लेती है पता ही नहीं चलता, एयर एलिमेंट से आती है। एक्शन चेंजेस जो होते हैं वो भी एयर देती है क्योंकि वो हर टाइम मूवमेंट में रहती है। एंड होल्ड्स डिस्ट्रक्टिव पावर्स एज वेल। इट इज एन masculine element. Air element corresponds to heart chakra and 6% portion in the body. Water element, water is fluid, agile and in flow always. It can be stable or in movement. ठीक है, सो वाटर इज लाइफ गिविंग एलिमेंट कहते हैं हम इसको, कि ये लाइफ गिविंग होती है बिकॉज इट इज पावर, क्योंकि आपकी परसेंटेज अभी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर का ही एलिमेंट होता है। इट इज पावरफुल एंड फॉर्मेटिव, मतलब किसी के भी फॉर्म में आ सकती है और पावरफुल है। वाटर कैन बी सटल, लाइफ गिविंग एंड रेजिंग लाइक सी वेव्स एंड कैलामिटीज। द एलिमेंट ऑफ वाटर इज सिंबल ऑफ इमोशंस, इंट्यूशन, नरिशमेंट, क्लेंजिंग एलिमेंट, क्योंकि वाटर से जब आप नहाते हो तो आप अपनी डर्ट्स को साफ करते हो, हीलिंग फॉर बॉडी, रिमूव्स इम्प्योरिटीज, डिटॉक्सिफाई यू, आप वाटर पीते हो तो आप डिटॉक्सिफाई करते हो अपने आप को। वाटर होल्ड्स मरीन लाइफ फॉर सो मेनी aquatic एनिमल्स, इट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी। वाटर एलिमेंट, अब इसी में मैं आती हूँ, मैंने डेथ कार्ड आपको मैं आज दूंगी वो वाला वीडियो। आप एक बॉडी को जब जलाने से पहले, क्रिमेट करने से पहले उसका वाटर से धोया जाता है। if you are, I don't know if you're aware or not aware, but body is washed and then only it is burned. So ये दोनों एलिमेंट ना, जो वाटर और फायर एलिमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, I mean, एक के बिना कुछ भी नहीं है, ये 5 एक साथ है, बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ एयर कितना इंपॉर्टेंट है, एयर के बिना आप जी नहीं सकते देखो। बट आई एम इन टू से कि इन वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये वाटर एलिमेंट से आप प्यूरिफाई होते हो और फिर आपको अल्टीमेट फायर प्यूरिफिकेशन देती है। So, ये दोनों एलिमेंट प्यूरिफिकेशन से जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। Water element is feminine and corresponds to sacral chakra, that is second chakra. Water holds the maximum amount of proportion in body, that is 71%. This makes water element extremely crucial and one without which human body cannot work. ठीक है, बट वाटर से ज्यादा अगर वैसे देखें लाइफ के हिसाब से तो एयर के बिना भी आप कहाँ कितनी देर तक सांस नहीं ले पाओगे। बट उसके बाद, सॉरी, यस आई विल से, उसके बाद आपका फायर आता है, सॉरी उसके बाद आपका वाटर आता है जिसके बिना आपकी बॉडी नहीं सरवाइव कर सकती। स्पेस इज आकाश, स्पेस इज स्काई, यूनिवर्स, वन दैट इज अबव एंड होल्डिंग अदर 4 एलिमेंट्स। जो बाकी आपके 4 एलिमेंट्स हैं ऊपर के, उसको होल्ड करने वाला कौन है? स्पेस एलिमेंट। इट इज द वन विच इज फंक्शनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। स्पेस एलिमेंट सिंबलाइज स्पिरिट, हेवन, नर्चरिंग लाइफ साइकिल। विदाउट स्पेस अदर 4 एलिमेंट्स कैन नॉट रिमेन इन अ कंजॉइंड मैनर। तभी मैंने आपको कहा था स्पेस एलिमेंट को हम भगवान से जोड़ते हैं, डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। आपका गुरु प्लैनेट जुपिटर इज योर स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट इज बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन। Its energy is of Shiva and Shakti, क्योंकि they hold your life. We always look up in sky to pray. आप ऊपर ही देखते हो ना, आपको जब प्रे करना होता है आप भगवान से ऊपर ही देख के कुछ मांगते हो, नीचे देख के थोड़ी ना मांगते हो, ठीक है। Why? Because that is, भगवान is always in the space element. It is the divine consciousness, initiation of wisdom and enlightenment. जहाँ पे आपका enlightenment start होता है वो आपका space element है, throat chakra. That's why it's very important. Space element corresponds to the throat chakra and have a proportion of 7% in the body. Okay, just give me a moment. Let me plug in the charger. Yes, so I'll just give you an introduction to the horoscope chart. फिर first half से हम कल next class start करेंगे, ठीक है।